Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the third chapter of class 4th subject science and the name of the chapter is adaptation in animals. Dear students, we already know that animals depend on plants for food directly or indirectly. Different animals eat different types of food. Animals have different food habits according to their eating habits. Animals can be divided into three categories: herbivores, carnivores, and omnivores. Animals that eat only plants are called herbivorous animals. For example, cow and goat. And animals that hunt and eat only flesh of other animals are called carnivorous animals. For example, tiger and wolf. While animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivorous animals. For example, bear and pig. Different birds have different types of beaks according to their food habits. In this video, we will learn about adaptation in animals based on their habitats, adaptation for surviving extreme cold and heat climate, adaptation for food habit, adaptation for protecting themselves, and some special adaptations such as camouflage, migration, and hibernation. How can animals live in such different places in the world? Animals and plants are adapted to the conditions of the habitat in which they live. ये एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को हैबिटेट के अकॉर्डिंग जहाँ ये रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. एनिमल्स live everywhere on earth. Some places on earth are very hot and some are very cold. Some places have a lot of water and plants and other places have very little water and few plants. More than 90% of Antarctica is covered with ice, but a few plants still grow there. What is an adaptation? The change in an organism's body or behavior that helps it to survive is called an adaptation. These changes take place over millions of years. Not all the organism can survive in all the places. सभी जो organism होते हैं, animals जो होते हैं, वो सभी places पे नहीं रह सकते. Camel can live in desert, but it cannot survive in cold places. Similarly, fish can live in only in water and not on land. Animals can live in many different places because they have special feature to survive in the area where they live. एनिमल्स डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं क्योंकि उनमें उस प्लेस पर सर्वाइव करने के लिए स्पेशल फीचर्स होते हैं. सम एनिमल्स कुड नॉट चेंज देमसेल्व्स. होल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डाइड आउट. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डाई हो जाते हैं एंड बिकम एक्सटिंक्ट. Thus, in order to survive, animals have to adapt themselves to changing conditions. Animals adapt themselves for food, food habit, protecting themselves, and surviving extremely cold and hot climate. Adaptation for habitat. Animals can be divided into different groups as per their habitat. Terrestrial animals, aquatic, amphibians, aerial, arboreal, and parasites.
Terrestrial animals. Animals that live on land, either on the surface of the ground or in the burrows below the surface of the ground, are known as terrestrial animals. वे एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं. स्नेक्स, रैबिट, माइस एंड फोक्सेस लिव इन बोरोज, while dogs, cat, tiger, lion, elephant, horse, camel, cow that live on open land. Most of them are adapted to live in open lands. Their strong legs help them to cover long distance in search of food and water. Snakes have scales in their body that help them to crawl. These animals have well developed digestive system. Their keen sense of smell, sharp eyesight, teeth, strong legs, claws and body color help them to prey on other animals. Adaptation for surviving extreme cold. Animals that live in cold regions have fur on their body to protect them from cold. वे एनिमल्स जो कि कोल्ड रीजन में रहते हैं, कोल्ड एरियाज में रहते हैं, उनकी जो बॉडी होती है उस पर फर होते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये फर उनको वार्मनेस देते हैं जिससे कि वो कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं. दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन टू कीप देम वार्म. फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन एंड पोलर बियर. एडेप्टेशन फॉर सर्वाइविंग एक्सट्रीम heat. Deserts are areas on land that are very hot during the day and very cold at night. डेजर्ट एरिया दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और नाइट में अधिक ठंडे होते हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल फूड एंड वाटर. यहाँ पे फूड और वाटर बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर. क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और रेन बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर फूड और वाटर की कमी रहती है. एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव थिक स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन. डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी स्किन थिक होती है जिससे कि वो अपने आप को सनलाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इट ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज. स्कॉर्पियन, हेजहॉग, बैंडिकोट, डेजर्ट टॉर्टवाइज, कंगारू रेट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट एनिमल्स. केमल तो आपने देखा है, आप सब लोग जानते हो. केमल हैव लॉन्ग आईलैशेस एंड थिक आईलिड्स टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द सैंड ब्लोइंग विद द विंड. जो सैंड विंड के साथ ब्लो होती है ये उससे उनकी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं. ये आईलैशेस जो होती है वो उस सैंड से उसकी आईज को प्रोटेक्ट करती है. दे हैव पेडेड फीट, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. दीज सम फीचर्स दैट हेल्प ए केमल टू लिव इन ए डेजर्ट. एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. वो एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. क्रैब्स, टर्टल, डक्स, फिशेज, व्हेल्स, डॉल्फिन्स, ये सब क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल. मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स टू हेल्प देम टू स्विम. मोस्टली जो ये वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होती है? स्विमिंग के लिए फिन्स और लिम्स प्रेजेंट होते हैं. और मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ करने के लिए क्या होते हैं उनकी बॉडी में? गिल्स. मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू द गिल्स, बट व्हेल एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू lungs. They come up to the surface of the water for breathing. मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल्स लंग से ब्रीथ करती है. ये ब्रीथ करने के लिए वाटर की सरफेस पे आती है. एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग. एक्वेटिक जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि डक,
डक में क्या होते हैं, इनके जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जिसकी हेल्प से ये वाटर को बैक साइड में पुश करते हैं और ये आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं। फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम टू कट वाटर एंड मूव इजीली। दे हैव स्केली स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो उस पर स्केल्स होते हैं, एंड द स्केल्स ऑन देयर स्किन आर वाटरप्रूफ, और ये वाटरप्रूफ भी होते हैं। एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर। वो एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों ही जगह पे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। जैसे कि फ्रॉग्स, टॉड्स, ये क्या है, एम्फीबियंस। दे हैव लिम्स टू स्विमिंग। अब इनमें जब ये वाटर में रहते हैं तो इनमें क्या होते हैं, ये किसकी हेल्प से स्विमिंग करते हैं, लिम्स। इनमें लिम्स होते हैं जिससे ये आसानी से स्विमिंग कर सकती हैं। सम ऑफ देम हैव वेब्ड फीट एंड टेल्स टू हेल्प देम इन स्विमिंग। दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर। जब ये वाटर में रहते हैं तो इनकी जो स्किन होती है उसकी हेल्प से ये वाटर में ब्रीथ कर सकते हैं। ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, और जब ये वाटर से बाहर यानी कि लैंड पे आते हैं तो किससे ब्रीथ करते हैं, लंग से। जब ये वाटर में रहते हैं तो ये स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जब ये एनिमल्स लैंड पे रहते हैं तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो एनिमल्स क्या करते हैं, फ्लाई, जो आसमान में उड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल birds, bats and some insects. Their forelimbs are modified as wings to help them to fly. इनके जो forelimbs होते हैं वो wings के रूप में चेंज होते हैं और इनकी फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। They also have feathers to keep them warm, और इनमें feathers भी होते हैं, and help during flight, जो कि फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। दे हैव होलो बोन्स टू मेक देयर बॉडी लाइट इन वेट। इनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती है, अंदर से खोखली होती है, जिससे कि इनकी बॉडी का वेट कम होता है और ये आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। देयर स्ट्रीमलाइंड और बोट शेप्ड बॉडी हेल्प्स देम टू कट थ्रू द एयर एंड फ्लाई इजीली। Some birds such as ostrich, kiwi and penguin cannot fly. They are known as flightless bird. ये जो birds होते हैं ये fly नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, flightless birds. Arboreal animals. Arboreal animals spend most part of their lives on trees. एर्बोरियल एनिमल्स जो होते हैं वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, ट्रीज पे। दे ईट, स्लीप एंड प्ले इन द ट्री कैनोपी। ये खाना पीना, सोना, खेलना, जितना भी जो काम होता है ये सारा कहाँ करते हैं, ट्रीज पे। मंकीज, स्लॉथ्स एंड गार्डन लिजार्ड्स आर सम एर्बोरियल एनिमल्स। मैनी एर्बोरियल एनिमल्स हैव लॉन्ग लिम्स दैट अलाउ देम टू स्विंग एफिशिएंटली फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। एर्बोरियल एनिमल्स में लॉन्ग लिम्स होते हैं जिससे कि वो आसानी से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर स्विंग कर सकते हैं। सम ऑफ देम हैव लॉन्ग टेल। स्पाइडर मंकीज, कैमेलियन यूज देयर टेल्स टू मूव एंड बैलेंस्ड देमसेल्व्स। ये एनिमल्स अपनी टेल्स की हेल्प से मूव भी करते हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस्ड भी करते हैं। Arboreal animals have strong grip so that they don't fall off. इनमें strong grip होती है जिसकी वजह से ये गिरते नहीं हैं। They have strong feet and claws. Their finger and thumb are shaped in such a way they can hold the branch firmly. Fingers और thumb की help से ये branch को आसानी से hold करके रख सकते हैं। Adaptation for food habit. The types of teeth animals have is an adaptation due to food habits. Food habits के basis पे different animals में different types के teeth present होते हैं. The teeth of herbivores are strong, broad and flat. They allow them to easily bite and chew the grass and leaves.
हर्बीवोर्स एनिमल्स में स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड और फ्लैट टीथ होते हैं जिससे वो इजीली फूड को बाइट कर सकते हैं और ग्रास और प्लांट्स की लीव्स को इजीली चबा सकते हैं। द टीथ ऑफ कार्निवोर्स आर शार्प। कार्निवोर्स एनिमल्स में टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं क्योंकि उनको फूड को टीयर करने के लिए वो क्या ईट करते हैं कार्निवोर्स, फ्लेश। तो फ्लेश को टीयर करने के लिए उनके पास शार्प पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट होते हैं। दे अलाउ देम टू इजीली टीयर द फ्लेश। ओमनीवोरस हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ टीयरिंग, बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ओमनीवोरस में टीयरिंग, बाइटिंग और ग्राइंडिंग टीथ का कॉम्बिनेशन होता है। बर्ड्स में टीथ नहीं होते हैं लेकिन उनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और शार्प बीक प्रेजेंट होती है जिससे वो इजीली फ्लेश को टीयर कर सकते हैं। पैरासाइट्स। Parasites are small animals that depend on other living organisms for their food. For example, mosquitoes. Mosquitoes suck the blood of humans and other animals are parasites. Parasites small animals होते हैं जो कि फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। इंस्टीड ऑफ टीथ दे हैव ए लॉन्ग शार्प पाइप। इनमें टीथ की जगह लंबी एक शार्प पाइप होती है। दे स्टैप एनिमल्स विद दिस पाइप एंड शक देयर ब्लड, जिसकी हेल्प से ये अदर एनिमल्स का ब्लड शक करते हैं। लाइक वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स विथ ए स्ट्रॉ। लीचीज एंड बग्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स। दे लिव ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड शक देयर ब्लड। ये अदर जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी पे रहते हैं और उनका ब्लड शक करते हैं। सम पैरासाइट्स सच एज हुकवॉर्म, राउंडवॉर्म एंड टैपवॉर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। कुछ पैरासाइट्स बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। दे ईट द फूड आफ्टर इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कौन से उनमें अडेप्टिव फीचर्स होते हैं। एनिमल्स हैव सम फिजिकल फीचर्स दैट हेल्प देम टू रिमेन सेफ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। नाउ फर्स्ट इज हॉर्न्स। हॉर्न्स मीन्स सींग। एनिमल्स लाइक राइनोसिरस यूज देयर हॉर्न्स टू पुश एंड थ्रेटन। राइनोसिरस अपने हॉर्न्स को जो अदर एनिमल उस पर अटैक करता है उसको पुश करने और उसको डराने के लिए यूज में लेते हैं। हॉर्न्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर डिफेंस। स्कैल्स यानी शल्क। एनिमल्स सच एज लिजार्ड एंड कैमेलियन एंड स्नेक्स हैव स्कैली बॉडी। इनकी बॉडी स्कैली होती है यानी कि इनकी बॉडी पर स्कैल्स होते हैं। द स्कैल्स ऑन देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग। Shell. The body of garden snail, crabs and tortoise are covered by a hard shell. गार्डन स्नेल, क्रैब्स और टॉर्टवाइज की जो बॉडी होती है उसके ऊपर की सरफेस पे एक हार्ड कवर होता है जिसे हम शेल कहते हैं। द शेल हेल्प्स देम टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमीज अटैक। ये शेल्स इन एनिमल्स को एनिमीज के अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। गार्डन स्नेल्स एंड टॉर्टवाइज कैन pull their heads, legs or their whole body inside their shell. ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि गार्डन स्नेल और टॉर्टवाइज, ये क्या करते हैं, अपने हेड, लेग और पूरी बॉडी को अपनी शेल के अंदर ले लेते हैं जिससे कि ये अदर एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्पाइंस। पोर्क्यूपाइंस हैव स्पाइंस ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडी। द स्पाइंस कैन इंजर एनिमीज that go near or attack it. पोर्क्यूपाइंस की जो बॉडी होती है उसके सरफेस पर स्पाइंस होते हैं। इट मीन्स उनकी बॉडी पर कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिससे ये किसी भी जो भी कोई एनिमी आता है उस पर अटैक कर सकता है, उसको इंजर्ड कर सकता है। एनिमल्स डेवलप वेरियस एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ईटन बाय अदर एनिमल्स। द ओशन हैज मैनी काइंड्स ऑफ फिश, small and big fishes. A small fish called puff fish protect itself by
पफिंग अप लाइक ए बैलून। ये फिश अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, बैलून की तरह खुद का एक पफ के रूप में बना लेती है। दिस मेक्स द शार्प स्पाइंस ऑन इट्स बॉडी पॉक्स, द शार्क कैन नॉट ईट इट। जिस स्पाइंस की वजह से इसको शार्क ईट नहीं कर सकती है। स्पेशल एडेप्टेशन। स्पेशल एडेप्टेशन क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स में स्पेशल एडेप्टिव फीचर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है, कैमोफ्लेज इज द एबिलिटी टू ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कैमोफ्लेज मीन्स एनिमल्स में ऐसी एबिलिटी होती है जिनमें एनिमल्स अपने आप को आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ब्लेंड कर लेते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं। इट इज़ ए यूजफुल सेल्फ डिफेंस मेथड फॉर एन एनिमल्स व्हेन ट्राइंग टू अवॉइड ए प्रीडेटर्स। Chameleon and leaf frog can change their appearance to match their surrounding. कैमेलियन और लीफ फ्रॉग क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप डायग्राम में देखो, ऊपर जो आपको पिक्स दी गई है उसमें देखिए कि क्या आप उसको देख सकते हो कि कहाँ पे है कैमेलियन? नहीं, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने प्रीडेटर से आसानी से बच सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द आर्कटिक फॉक्स कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स सराउंडिंग। आर्कटिक फॉक्स जो होती है वो अपने फर का कलर चेंज कर लेती है, जैसे कि आपको शो हो रहा है कि इन विंटर सीजन में और ऑटम सीजन जैसे ही स्टार्ट होती है, ये क्या करती है, इट्स फर कलर चेंजेस टू वाइट, and in spring and summer the Arctic fox has grey fur. Hibernation. In habitats that get very cold, animals adapt by sleeping for up a few months at a time. It is called hibernation. जब बहुत कोल्ड क्लाइमेट रहता है तो कुछ एनिमल्स अपने हैबिटेट में कुछ मंथ्स तक स्लीप करते हैं, इट मीन्स सोते हैं और अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करते हैं। यह प्रोसेस हाइबरनेशन प्रोसेस कहलाती है। ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल्स सर्वाइव ऑन द स्टोर फैट इन इट्स बॉडी। हिबरनेशन के दौरान एनिमल्स अपनी बॉडी में स्टोर फूड जो होता है वो फैट के रूप में होता है, जो फूड फैट के रूप में स्टोर होता है उसी से एनर्जी लेकर सर्वाइव करते हैं। बियर्स, चिपमंक्स, बेट and hedgehogs are some animals that hibernate. If you have any query, concern or suggestions, please write us on mentioned comment box. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.